हेलो। जी जी मैम, जी बताएं। हाँ सर, वो आज एक मैसेज आया था सर्टिफिकेट के लिए। वहाँ पे ना मेरे नेम का स्पेलिंग कुछ गलत है। नाम बताइए मैडम आप। चंद्रानी अग्रवाला। आप उसी में करेक्ट कर दीजिए अपना नाम, उसको टैग करके कर सकती हैं। उसमें ऑप्शन तो दिखा नहीं सर। नेम के करेक्शन का ऑप्शन नहीं है सर। मेरा भी नाम गलत है। नेम के एडिट करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। नेम मांग ही नहीं रहा है वो। शैलेंद्र सर बात तो सुनिए। नेम कर उसी लिए गया कि आप अपना नाम सही कर दें। वहां साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस ईमेल आईडी पे बोलिए। हाँ, मेल कर दिए है। आज चौहान जो मैडम बस काफी है, आपको हो जाएगा, आप प्लीज। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बता दिए दोबारा। प्लीज स्टार्ट द क्लास प्लीज। Dear participants, good afternoon all of you. Today we have very esteemed professor from Jamia Millia Islamia, Dr. Jasim Ahmad Saab. He is the professor in Department of Education at Jamia Millia Islamia, New Delhi. He did his PhD, MD, MSc Geology, UGC NET in Education. He is the professor of the Institute of Advanced Study in Education. Professor Ahmad has a teaching and research experience of more than 20 years. Actually, he started his career from Department of B.Ed, Shibli National PG College, Azamgarh, Veer Bahadur Singh Vishwavidyalaya, Jaunpur. Then he joined Department of Education or Advanced Studies in Education, Jamia Millia Islamia, and he became reader, associate professor in the same department and professor in the same department. He has published 7 books, namely Teaching of Biological Science, Biological Pedagogy of Science, Reflective Practices, Personality Pattern and Job Satisfaction, a study of school teachers, Computer Application in Education, Educational Measurement, Action Research, Case Study and Achievement Test in Urdu, Understanding Self. More than 60 research papers he has published in various journals of reputes, around 50 research papers in conferences, and 13 chapters in edited books, 16 units and blocks in self-learning material, इसको हम SLM कहते हैं, in various distance education programs. He has delivered more than 100 invited lectures and attended almost 75 workshops. You just see how enriched and how hard-working professor he is, and coordinated a number of training programs. A dozen of scholars have been awarded PhD under his supervision, and about 4 to 6 PhD he is still guiding. More than 40 dissertations at PG level he is supervising and already supervised. He has contributed in the university administration in many capacities, like elected member of Academic Council, Deputy Director of DIC, CIE, Nodal Officer of IQAC, and Senior Warden of the different hostels of the halls of Jamia Millia Islamia. He has been also discharged his duty in the proctorial team, Flying Squad team, Assistant Superintendent of various examinations, and coordinators of Curriculum Design Committee. He has privileged to be an external member of Board of Studies and Faculty Committee, not only in Jamia Millia, but also in other universities of India. He has been associated with the monitoring of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, RMSA, Sarv Shiksha Abhiyan, and Mid-Day Meal Scheme, MHRD, Government of India. Adolescents Education Program for Madrasa of Bihar, sponsored by United Nations Population Fund, UNFPA. I have privileged to work with him in the same program, which has been organized by very different madrasas of Bihar under the United Nations Population Fund. He has also made valuable contribution in the Government of India National Mission on Education through ICT in the form of video lecture for Arpit and Swayam Prabha. Recently, he has been awarded Proud Indian Eminent Professor Award in 2021 in Teacher Education by IMRF, Andhra Pradesh, on the occasion of India's 73rd Republic Day. Professor Jasim Ahmad is having substantial contribution with many universities and institutions of higher learning, and have been associated with apex body in the field of school education,
teacher education and higher education is detailed. I think if you really want to detail, I'm just giving you the very brief introduction about the Jasim sir. Just 2 and 3 points I will also add as much as my personal experience is concerned. Jasim sir is a very professional and very polite person, I will say, and he always encourage his younger students as well as the faculty members in their respective subjects. With these words, if you really want to know detailed profile of the Professor Jasim sir, you can visit on the Institute of Advanced Studies Education, Jamia Millia Islamia, and you will be able to know much more about him. With these words, I don't want to be between you and Professor Jasim Ahmad Saab. Sir, with humble request, I would like to invite you to deliver your lecture on the topic. Now the mic over to you, sir. Please. Thank you so much. Thank you, Aftab Sahab, for a very nice introduction. Generous introduction, I can say. Thank you, sir. But the most important thing is that how I'm going to deliver in this particular session with these participants, and up to what extent I'm able to deliver on the topic of today's discussion, inclusive education, and up to what extent these participants can make me learn from their experiences. So this session is going to be a two-way, not a single way, but as this session is of 1.5 hours, so probably at almost 1 hour, I will be speaking about inclusive education based on my understanding, my experiences with the schools, with the college, with the university, with the Indian society, etc. And then after, the house will be open for discussion, for questions, and for sharing your experiences that you may have in the field of inclusive education. You must be aware that inclusive education, although has been the pinpoint of all the governments which have been ruling party of India since independence, and government has been doing a lot about inclusive education, a lot about including each and every section of the society, mainstreaming each and every section of the society across the level and across the country. But this particular National Education Policy 2020 has a special focus on inclusive education. That is the reason that government is trying to sensitize and to make all the individuals, all the stakeholders, especially teachers, make aware and make it beneficial for each and every individual of the society. And that's why National Education Policy 2020 has a specific chapter in it. Chapter number 6 is totally devoted to inclusive education. So we will be discussing in the next 1.5 hours about this particular aspect. The first very important question which comes into our mind, that why we talk about inclusive education. What were the circumstances which compelled us to think about and to talk about and to focus upon inclusive education? हमें क्यों जरूरत पड़ी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात की जाए? हमें क्यों जरूरत पड़ी कि इक्विटेबल एजुकेशन पर बात की जाए, इक्विटेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज पर बात की जाए? इसकी नौबत क्यों आई? Why this situation arises? Why this condition arises? Why the government was compelled to put a special chapter on inclusive education in its National Education Policy 2020? What was the reason behind that? So these are the main focus of the discussion and deliberation, because this has the answer of all these questions. What is inclusive education? Why we need inclusive education? And how inclusive education can be made effective through its implementation? So these three important questions are there, which is required to be discussed and deliberated. So the first question, why we need inclusive education? हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया में इतना डाइवर्स कंट्री, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री इतना डाइवर्स नहीं. So India is so diverse. There is no country in the world which is so diverse as India. जो डाइवर्सिटी हमारे हिंदुस्तान में है, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो, रीजनल डाइवर्सिटी हो, लिंगुअल डाइवर्सिटी हो, और किसी भी टाइप की डाइवर्सिटी जो हो सकती है, वो सब जितनी हिंदुस्तान में है शायद दूसरे किसी मुल्क में नहीं है, ग्लोबल लेवल पे नहीं. जाहिर सी बात है, जब डाइवर्सिटी होती है तो कई बार डिस्पैरिटीज पैदा होती, होगा ही होगा, ये ऑटोमेटिक है.
If there is diversity, disparities will be there. And if diversity is there, disparity is there, then of course people will have to face challenges regarding that. और इसीलिए इन डाइवर्सिटीज के बना पर की वजह से जो डिस्पैरिटीज पैदा हुई, उसके वजह से कुछ लोग तो बहुत तरक्की कर गए, एजुकेशनल के लेवल पे भी, इकोनॉमिक लेवल पे भी, और कुछ लोग पीछे रह गए, और कुछ लोग बहुत पीछे रह गए, जो इससे हम सब वाकिफ हैं. एवरी वन ऑफ अस आर अवेयर अबाउट दैट. जो डाइवर्सिटी है, हम लोग जो कहते हैं लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास सोसाइटी, all comes under this particular, diversification on the basis of economy, diversification on the basis of culture, on the basis of religion, on the basis of, place of habitat. जहां हम रहते हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है, अलग तरह का लाइफ स्टाइल एंजॉय करता है, कोई मेगा सिटी में रहता है, अलग तरह का लाइफ एंजॉय करता है, कोई नॉर्मल सिटी में रहता है, टाउन में रहता है, सब टाउन में रहता है, और कोई विलेजेस में रहता है, छोटे छोटे हैबिटेट में रहता है. और जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस दे फेस इन देयर 24 आवर्स लाइफ. हर चीज में फर्क आ जाती है. उनके हेल्थ फैसिलिटीज में भी फर्क है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में, एजुकेशनल फैसिलिटीज में फर्क है, हर एक लेवल पे फर्क है. और ये फर्क ही उनके तरक्की की या तजल्ली की, उत्थान की, उन्नति की या बैकवर्ड होने के कारण बनता है. इसलिए दिस इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. सिर्फ भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि इन डाइवर्सिटीज की वजह से, डिस्पैरिटीज की वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं, उनका निवारण किया जाए. और सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यकीनी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी सिटीजन की जिम्मेदारी भी है, हम सभी टीचर की जिम्मेदारी भी है, हम सभी स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है कि जहां तक पॉसिबल हो सके हम जो चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज ऑफ डिस्पैरिटीज, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करें. तो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे बहुत कुछ किया, पहले भी किया और अभी कर रही है. और इस नेक्स्ट NEP 2020 में खास तौर पे एक मैंने जैसे कहा चैप्टर नंबर 6 है, टोटली डिवोटेड है, मैं उस पर बात करूंगा, है ना. अब द क्वेश्चन इज कैसे इसको एड्रेस किया जाए, कैसे एड्रेस करें, और इसकी वजह से क्या क्या इश्यूज सामने आ रही हैं. If you look back to the scenario of India 25 years before or 50 years before, 50 साल पहले का हिंदुस्तान अगर देखें आप, नहीं, और 25 साल पहले का हिंदुस्तान देखें और आज का हिंदुस्तान देखें, तो आपको साफ नजर आएगा कि ये डाइवर्सिटी की वजह से, डिस्पैरिटीज की वजह से एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस, कल्चरल बैकवर्डनेस, लिंगुअल बैकवर्डनेस एट डिफरेंट लेवल्स किस तरह से हिंदुस्तान में रहा. कैसे पूरा मुल्क, जाहिर सी बात है, उसको सफर करता है. इंडिविजुअल, नॉट ओनली इंडिविजुअल हु फेस दिस द इशू, इसका असर पूरे देश पे पड़ता है, पूरे देश की GDP पे पड़ता है, पूरे देश की तरक्की पे पड़ता है. एक आदमी अगर एजुकेटेड होगा, एक आदमी की पर कैपिटा इनकम अगर बेहतर होगी, यकीनी तौर पे वो अपनी जिंदगी को बेहतर करेगा. लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर कर रहा है, तब भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पूरे मुल्क को सपोर्ट कर रहा है. कि कम से कम मुल्क को अब उसके बारे में तो ज्यादा नहीं सोचना है ना, वो तो कामयाब हो गया, वो तो अपने स्केल को बढ़ा दिया, उसका वर्टिकल मोबिलिटी हो गया, उसने स्टेटस को अचीव कर लिया, उसने अपने पर कैपिटा इनकम को जो है इम्प्रूव कर लिया, और जाहिर सी बात है फिर उसके बाद की जनरेशन उसकी ठीक होगी. सो बहरहाल we will be talking about all these things with the help of a PowerPoint presentation, because PowerPoint presentation is also very important and all the participants need to look at that. So I'm going to share my presentation. With the help of that, we will be discussing various aspects of this topic. Is it visible? Yes, sir. Okay. So this is equitable and inclusive education, learning for all. Okay, this is the title. The title which was given to me was just inclusive education. In the light of NEP 2020, I have designed this way: equitable and inclusive education, learning for all. यानी कि
सिर्फ हम इंक्लूजन की बात ना करें at the level of enrollment or admission of the children in the school or admission of students at higher education level in college or universities, हम उनके इनरोलमेंट को ही इंश्योर ना करें सिर्फ, बल्कि इनरोलमेंट से लेकर के लर्निंग आउटकम तक को इंश्योर करना। इसलिए लर्निंग फॉर ऑल मस्ट बी इंश्योर, ये पूरी की पूरी चीज। जैसा भी बात कर रहा था मैं कि व्हाई वी टॉक ऑफ इंक्लूजन एंड इक्विटी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। लार्ज डिस्पैरिटीज स्टिल रिमेन इन द कंट्री, ये भी मैंने बात ऑलरेडी कर ली। और जो मैंने कहा कि एनईपी 2020 सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ये एसीडीजीज का जो टर्म है पहली बार एनईपी 2010 ने यूज किया है, पहली बार सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, और ये चैप्टर 6 के अंदर एनईपी 2020 के अंदर एड्रेस किया हुआ है इसी टाइटल के साथ, इसी टर्म के साथ, कि हाउ टू ब्रिंग इंक्लूजन ऑफ दोज हु आर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन इंडिया। उसमें शेड्यूल कास्ट भी हैं, शेड्यूल ट्राइब भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज भी हैं, दलित भी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हैं, जो है आपको लैंग्वेज के बेस पे जो बैकवर्ड हैं, किसी भी बेस पे जो बैकवर्ड हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, क्लिनिकली हैंडीकैप्ड हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट है, आपको किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट हो सकता है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड in socio-economically disadvantaged groups of the society, and NEP 2020 trying to ensure learning for all of them, education for all of them, so that not only their lifestyles may be improved, but as a whole national progress can be ensured. अब थोड़ी सी झलक मैं दिखलाता हूँ आपको कि किस तरह से हम on what basis we can say, तो हमें नजर आता है ऑब्जर्वेशन के बेस पर हम देखते हैं, लेकिन एक डाटा मैं कुछ आपको देख रहा हूँ। ये देखिए, ये डाटा बहुत ही यूडाइस का डाटा है और बहुत पुराना डाटा है, 16-17 का डाटा है, मेरे लैपटॉप पे पड़ा हुआ था, है ना। हाँ, ये बहुत पुराना है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, है ना। ये यूनिवर्सल जो डाटा हमारे होता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ स्कूल्स है, उसका डाटा है 16-17 का। आप देख सकते हैं इसके अंदर SC का है, ST का, और PWD का डाटा इसके अंदर है। प्राइमरी लेवल स्कूलिंग का भी है, हायर सेकेंडरी का भी है। यू कैन सी इट कि शेड्यूल कास्ट का क्या लेवल है। 19.60% सिर्फ इनरोलमेंट है इनका स्कूलों में 16-17 में है, और अभी बढ़ करके 25% से ज्यादा नहीं हुआ है, बता दो आपको, है ना, 2024 के बाद, है ना। और हायर सेकेंडरी में जाकर 17.30% होता है इनका एनरोलमेंट। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब का प्राइमरी लेवल पे 10.60% ओनली इनरोलमेंट है, यानी कि जो पॉपुलेशन इनकी है उनमें से सिर्फ 10.60% लोग इनरोलमेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 89.40% बच्चे स्कूल आते ही नहीं है, और हायर सेकेंडरी पे 6.80% सिर्फ इनरोलमेंट है। PWD कैटेगरी में जो बच्चे हैं, जिसमें जितने भी इम्पेयरमेंट्स सारे आ जाते हैं, PWD एक्ट जो है तकरीबन 21 तरह के कैटेगरीज की बात करता है जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसमें 1.10% सिर्फ 100 में से 1.10% लोग सिर्फ एडमिशन लेते हैं स्कूल में प्राइमरी लेवल पे, और उसमें से सिर्फ 0.25% जाते हैं हायर सेकेंडरी तक पहुंचते हैं। बाकी बीच में लॉस हो जाता है, एकेडमिक लॉस, ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। सो दिस इज द क्रिटिकल इश्यू ऑफ इंडियन एजुकेशन एट स्कूल लेवल। कितना बड़ा पोर्शन है जो एडमिशन लेता ही नहीं है, SC, ST और PWD का देख लीजिए। यही हाल माइनॉरिटीज का भी है, डिफरेंट माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज का हाल तो और ज्यादा खराब है ना, और ज्यादा खराब है। ये सारी के सारी चीजें, तो इन सबको गवर्नमेंट कहती है इंक्लूड करो, इंश्योर करें कि हम 100% में से 100% आ जाए स्कूल, और पूरी करें पूरी एजुकेशन अपनी, है ना। ये सारी के सारी चीजें। उसी तरह से दूसरा ट्रेंड देखिए आप, ये थोड़ा सा करंट भी डाटा इसके अंदर है, 2021 का असर का डाटा जो बाद में है, लेकिन पहले ये ट्रेंड ग्राफ आपको दिखला रहा है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल दोनों का है। ब्लू कलर में गवर्नमेंट स्कूल है, रेड कलर में आपका जो है प्राइवेट स्कूल है। शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल डिक्रीजिंग, आप देख सकते हैं कि बच्चों का इनरोलमेंट है, बच्चों का जो एडमिशन है गवर्नमेंट स्कूल में जो उनका शेयर है लगातार 2008 से लेकर के 7-8 से लेकर 2019-20 तक लगातार गिरता चला जा रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द शेयर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, you know, in providing education to the children. In other words, बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में कम जा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी तादाद कम होती चली जा रही है, और प्राइवेट स्कूल में
बच्चों की एडमिशन बढ़ता चला जा रहा है 2007-8 से 2019-20 तक लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये ट्रेंड क्यों है? Why this is the trend? Why? There must be something. There must be something good in private schools and there must be something bad in government schools. गवर्नमेंट स्कूल शायद उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है जो प्राइवेट स्कूल दे पा रहा है। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को शायद लोग समझने लगे हैं, जिनके पास पैसा है वो बच्चों को अपने प्राइवेट स्कूल में ही डालना चाहते हैं शायद। दिस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस ग्राफ। असर की रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन एजुकेशन 2021 जो प्रथम निकालता है ना, वो कहते हैं कि 2021 में ये रिवर्सल हुआ है, ऑर्डर पलट गया है, यानी कि बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा जाने लगे हैं। एक बड़ा ट्रेंड तो उसका ये हुआ है, जो बताओ रीजन उसके पीछे क्या है। 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है। एक बड़ा रीजन कोरोना का है। 2021 में जो कोरोना हुआ, लोगों की इनकम सीधे चली गई, जमीन के ऊपर चली गई, लोगों की जॉब चली गई, एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ, सिर्फ लोगों की इनकम बहुत कम हो गई, घर पे बैठ गए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहा। मजबूरी में उनमें से लाख्स ऑफ लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल करके गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराया। बहुत बड़ा रीजन है ये। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली के स्कूलों की हालत बहुत अच्छी हो गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ किया है। क्योंकि मैं जाता जामिया में हूँ, स्कूल में जाता हूँ, विजिट करता हूँ टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान अपने बच्चों को। जब बीएड में जाते हैं तो मैं देखता हूँ स्कूल को, जो 10 साल पहले स्कूल हुआ करता था, 15 साल पहले, 20 साल पहले, और आज स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में आसमान जमीन का फर्क हो गया है। तो ये भी रहा दिल्ली में, एक वजह ये भी रही है कि लोगों ने फिर सरकारी प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालना शुरू किया। जरूरत इस बात की है कि हम गवर्नमेंट स्कूल को ऐसा बनाएं कि पेरेंट्स बच्चों को सीधे गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। बनाना पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है, उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो डिस्पैरिटीज को हमें कम करना होगा, कम करने की जरूरत है। तो देखा आपने इनरोलमेंट का ट्रेंड, यही है। इनरोलमेंट का ट्रेंड जो है क्लास 1 से क्लास 12 तक जो आपने ग्राफ देखा, उससे आपको अंदाजा हो गया होगा। डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ इनरोलमेंट है, क्लास प्राइमरी लेवल से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक और यूनिवर्सिटी तक है। बल्कि यूनिवर्सिटी में जाकर के और ज्यादा कम हो जाता है डिक्लाइन। ओवरऑल इनरोलमेंट्स इन स्कूल्स declined steadily from grade 1 to grade 12, significantly higher among SCDGs, जो खास तौर पे वो बच्चे जो SCDGs से आते हैं, सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, उनका तो डिक्लाइन और ज्यादा होता है। इवन ग्रेटर डिक्लाइन फॉर फीमेल स्टूडेंट, लड़कियों का और ज्यादा डिक्लाइन है। लड़कों को फिर भी लोग पढ़ाते हैं। एक इंडियन फिलॉसफी जो है, इंडियन कल्चर में जो हम लोगों के समाज है कि भाई ये बेटा है, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी दूसरे के घर। तो एक पूरा का पूरा सिनेरियो है कि बेटों के एजुकेशन पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा खर्चा किया जाता है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि बेटे को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में और लड़कियों को पढ़ा देते हैं सरकारी स्कूल में। तो ड्रॉप आउट भी लड़कियों का ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, रिलीजन फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, देयर में बी वैरायटी ऑफ रीजंस। तो ये जो डिक्लाइन का ट्रेंड है फीमेल स्टूडेंट्स का और ज्यादा है, एंड द डिक्लाइन इन enrollment in higher education is even steeper, बहुत ज्यादा। हायर एजुकेशन में डिक्लाइन और ज्यादा है। आपको शायद पता होगा कि हायर एजुकेशन में तो हमारा जो GER है बहुत कम है, 28% के आसपास है। यानी कि 100 बच्चे जो 12th क्लास करने के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनमें से सिर्फ 28 बच्चों के आसपास यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। बाकी 72 स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, बच्चे जाते नहीं लेते एडमिशन। तो जॉब में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, कारखाने में लग जाते हैं, अपने घरेलू कारोबार में लग जाते हैं, या किसी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, कॉलेज में नहीं जाते। ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। सो इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू क्रिएट सीवियर प्रॉब्लम इन फ्यूचर, नॉट ओनली एट इंडिविजुअल लेवल एंड फैमिली लेवल एंड सोसाइटल लेवल, बट एट नेशनल लेवल एज वेल। राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी अगर हमने इस इशू को सॉल्व नहीं किया। Each and every individual is an asset for the country. हर एक व्यक्ति पूरे देश के लिए एक एसेट है, और एसेट बनाना पड़ता है, एसेट का निर्माण होता है ना। ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स का फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर क्वालिटी पैदा करनी पड़ेगी, उसके अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा, उसे एजुकेट करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर पैदा करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने और सॉल्व करने की कैपेबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। All these is possible through education. वरना वही आबादी, वही मेल और फीमेल, वही
बॉयज एंड गर्ल्स, जो हमारे मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए एक एसेट हो सकते हैं, वही अगर उन्हें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन खासतौर पे नहीं दी जाएगी, तो वही बोझ बन जाएंगे, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कॉमर्स वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बोझ बन जाते हैं माशरे के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाया जाए और समाज के हर एक तबके को एजुकेशन का पूरा पूरा मौका मिले, और ऐसी एजुकेशन जो क्वालिटी एजुकेशन हो। ये बात भी कहनी बहुत जरूरी है, सिर्फ एजुकेशन नहीं। एक और डाटा मैं दिखाता हूँ जो ज्यादा करंट है, नेस की रिपोर्ट है 2021 की, उसका डाटा है। इसको देखने से भी आपको अंदाजा लगेगा, वो तो एनरोलमेंट का था, ये अचीवमेंट का है। यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस डाटा। नेस लैंग्वेज, मैथ, ईवीएस, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश का टेस्ट लेती है, क्लास 3 का, क्लास 5 का, क्लास 8 का, क्लास 10 का। ये डाटा है 2021 का, 3 साल पुराना डाटा है। अभी तो नेस की रिपोर्ट अभी 23 की भी आ गई है। यू कैन सी हियर हाउ the marks of the students out of 500 they are achieving, and how these marks scored by the students, which is an average showing here, is declining as they move from lower level to higher level. You can see सबसे पहला कलर जो ब्लू है वो क्लास 3 का है, उसके बाद क्लास 5 का है, फिर क्लास 8 का है, फिर क्लास 10 का है। 4 आप देख रहे हैं हिस्टोग्राम, 4 डिफरेंट कलर्स। तो लैंग्वेज में क्लास 3 में बच्चों का एवरेज स्कोर है 323 आउट ऑफ 500, और क्लास 5 में ये 323 घट करके 309 हो जाता है आउट ऑफ 500। क्लास 5 के बाद क्लास 8 में वो 309 घट करके 302 हो जाता है, और फिर क्लास 10 में ये घट करके 260। इतना ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, 260 260 पे आ गया सीधे। इसका मतलब है कि अटेनमेंट, जो उनका अचीवमेंट है, जो लर्निंग आउटकम्स है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है, वो भी डिक्लाइन हो रहा है। एक तो एनरोलमेंट डिक्लाइन हो रहा है, आपने पहला ग्राफ देखा, जो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में दाखिला लेता है पहली क्लास में, वो उसमें से कितने परसेंट 10वीं तक पहुंचते हैं, 12वीं तक पहुंचते हैं, ये देखा आपने। अब ये है कि जो बच्चा पहली क्लास में जो उसका लेवल ऑफ अचीवमेंट है वो कैसे डाउन हो रहा है 10वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते। लैंग्वेज में देखा 323 से 260 पे आ रहा है। मैथ में देखिए तो वो 306 है पहली क्लास में, और वो 10 तक पहुंचते पहुंचते 220 पे चला आता है एवरेज स्कोर उस सब्जेक्ट में। उसी तरह से ईवीएस का सिर्फ क्लास जो है 2 ही क्लास में होती है ईवीएस, 3री और 5वीं में। 5वीं के बाद 6ठी से साइंस शुरू हो जाता है, ईवीएस खत्म हो जाता है। इसलिए सिर्फ यहाँ पर 2 बार ग्राफ देख रहे हैं आप। 307 है 3री क्लास में, अब 5वीं क्लास में 283 हो जाता है, एवरेज यहाँ भी डिक्लाइन हो रहा है। साइंस में देखिए, साइंस जाहिर सी बात है क्लास 8 और 10 का है ये रिजल्ट, क्योंकि साइंस शुरू ही होती क्लास 6 से। 250 है एवरेज स्कोर आउट ऑफ 500, यानी कि 50% है एवरेज स्कोर, जो घट करके 10 में 206 हो जा रहा है। एसएसटी 255 से 231 हो जा रही है, और इंग्लिश का सिर्फ 10th में होता है, ये 277 है यहाँ। तो यू कैन सी हाउ द एनरोलमेंट इज डिक्लाइनिंग एंड हाउ द लर्निंग achievements or learning outcomes of the students are declining from primary stage to the secondary stage. इसका मतलब है there are some issues, there are some problems. Every student is not learning, and we need to ensure learning for all. Inclusive education try to ensure not only enrollment but also retention of the students in the class, their regularity and punctuality in the class, and their learning outcomes as well at the end of the course. वो सब चीज को इंश्योर करने की बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा जो SDG 4 है, वो कहता है 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो उसको हिंदुस्तान ने 2015 में अडॉप्ट किया, उनके हिसाब से we are trying to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030, 2030 तक हमें ये करना है, ये अचीव करना है। बाय 2030 यानी कि आज से 6 साल के बाद से 2024 आज है, यानी कि 6 साल के अंदर बाय 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। एक तो इंक्लूसिव होगा, इक्विटेबल होना चाहिए, एंड क्वालिटी एजुकेशन की बात, एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये यानी कि 6 साल के अंदर अब आप सोचिए कि क्या अचीव
हम किस हद तक अचीव कर पाएंगे और कितना ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर इसको अचीव करना है 2030 तक, तो आपको सिर्फ एक प्लान की तरह, प्रोग्राम की तरह काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक ऑपरेशन की तरह काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, तब कर पाए शायद। तब भी बहुत मुश्किल होगी, है ना। एनीवे, लेकिन अगर युद्ध स्तर पे काम करेंगे, ऑपरेशन की तरह काम करेंगे, रिवोल्यूशन की तरह काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है। दिस इज द मेंटालिटी। नाउ, एज आई हैव ऑलरेडी stated in the beginning, part 1 of National Education Policy 2020, chapter 6 talks about education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. This is the statement taken from NEP 2020. NEP खुद एक्सेप्ट करता है, education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. सामाजिक न्याय और समानता को हासिल करने का एजुकेशन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता दुनिया में नहीं है, हिंदुस्तान के बाद में दुनिया में नहीं। Education is the only way, it is the only tool which can do this. And that is the reason that education in general and quality education in particular needs to be ensured for each and every citizen of the country. देश के हर एक नागरिक के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए इसको इंश्योर करने की जरूरत है, और उसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए। हर बच्चा, कहते हैं ना, सब पढ़े और सब बढ़े, जो नारा है गवर्नमेंट का, सब पढ़ें और सब बढ़ें। बढ़ने के लिए शर्त है कि सबका पढ़ना, और सब पढ़े इसके लिए शर्त है इंक्लूसिव होना, और सब इंक्लूसिव होने के लिए शर्त है कि हमारी हुकूमत, हमारे टीचर्स, हमारा सिस्टम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस पर काम करे। और स्कूल में एलिजिबल बच्चे जो एडमिशन के लिए डिफरेंट क्लासेस में राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से, और यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको दाखिला दिया जाए। कोई ये ना कहे कि हमारा दाखिला नहीं हो पाया, हमें स्कूल नहीं मिला, हमें यूनिवर्सिटी नहीं मिली, हमें कॉलेज नहीं मिला, कोई ये ना कहे। अगर कोई कहता है कि हमने अप्लाई किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में, जीएनयू में, बीएचयू में, और एडमिशन नहीं मिल पाया, तो अफसोस की बात है। क्यों नहीं मिला एडमिशन? सीट कम थी, सीट क्यों नहीं बढ़ाई थी? गवर्नमेंट फंड क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट फंड दे। हमारे पास 50 बच्चों को एडमिशन लेने के लिए एक क्लास में, एक कोर्स में 200 सीट है, लेकिन हमारे पास टेकर्स अगर ज्यादा हैं, ज्यादा बच्चे आना चाहते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हमारे हैं, दिल्ली में नहीं हुआ, जामिया में नहीं हुआ, अलीगढ़ में नहीं हुआ, बीएचयू में नहीं हुआ, कहीं तो हो एडमिशन जहां वो, है ना, नहीं मिलना चाहिए। और सीट भी बढ़ानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनके टारगेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाए, टारगेट कोर्स में एडमिशन मिल पाए। जाहिर सी बात है, इसके लिए टीचर बढ़ाने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी फैसिलिटीज को बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट एंड द सिटीजन, दोनों को कम्बिल का काम करने की जरूरत है, तब जाके इंश्योर हो पाएगा। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन क्रिटिकल टू अचीविंग an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation. ये बात है। जब शिक्षा ही नहीं होगा, एजुकेशन ही नहीं होगी, तालीम नहीं होगा, तो फिर वो क्या ख्वाब देखेगा, क्या थ्राइव करेगा, क्या कंट्रीब्यूट करेगा? नेशनल कंट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है कि पहले एजुकेटेड हो आप, स्किल्ड हो आप, एजुकेटेड हो, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो, तभी आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एजुकेशन नेशन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। The education system must aim to benefit India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. Background की वजह से, चाहे वो पैदा हुआ हो गांव में, पैदा हुआ हो शहर में, पैदा हुआ हो इलिटरेट पेरेंट के गोद में, या पैदा हुआ हो लिटिल पेरेंट के गोद में, पैदा हुआ हो डॉक्टर्स की फैमिली में, इंजीनियर्स की फैमिली में, प्रोफेसर्स की फैमिली में, बिजनेस क्लास की फैमिली में, रिक्शा चलाने वाले की फैमिली में, जानवर चलाने वाले की फैमिली में, किसान के घर की फैमिली में, दर्जी के घर की फैमिली में, पैदा कहीं भी हुआ हो, पैदा होने की मकाम, पैदा होने की जगह और उसका बैकग्राउंड, उसका शिक्षा के बीच में नहीं आना चाहिए, दीवार नहीं बननी चाहिए। ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है, और इंक्लूसिव एजुकेशन इसी की बात करता है। इंक्लूड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन। क्रिएट सर्कमस्टांसेस वेयर क्वालिटी लर्निंग कैन बी इंश्योर्ड। ये पर्पस है। इसका मतलब है कि आपको ब्रिज करना पड़ेगा, ब्रिजिंग द सोशल कैटेगरी गैप्स इन एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन। ब्रिज करना पड़ेगा बहुत सारे गैप्स जो हैं
उन सारे गैप्स। क्या क्या गैप्स हैं देखिए, दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप्स। 5 लेवल्स पे आपको ब्रिज करना है। एक तो एक्सेस है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। हर बच्चे को शिक्षा लेने के लिए उसकी पहुंच होनी चाहिए, यानी कि बच्चा अगर पैदा हुआ तो उसके लिए स्कूल होना चाहिए। ये ना कहे उसका पेरेंट्स कि हमारे बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया, यह स्कूल इतना दूर था कि हम बच्चे को भेज नहीं सकते थे, हमारे पास जो है सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, कोई ले जाने वाला नहीं था, स्कूल बहुत दूर था। तो एक्सेस का जो इशू है सबसे बड़ा बैरियर था हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा बैरियर था। आज़ादी के वक्त बहुत बड़ा बैरियर था, लेकिन बैरियर को कम करते 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 राइट टू एजुकेशन जब आया 2009-10 में, तो बैरियर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया एक्सेस के मामले में, है ना। कई बार काम हुए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 1986 की पॉलिसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम आई थी। उस वक्त मेरे ख्याल में मैं 11th-12th में था। इस गांव में स्कूल की बिल्डिंग नजर नहीं आती थी इन दोज डेज। आप में से जो लोग उस दौर के हों या सुना हो तो आपको पता होगा, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम लोग। हमने अपने प्राइमरी स्कूलिंग पेड़ के नीचे की है, कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कभी भैंस के तबेले में भी पढ़ा बरसात के ज़माने में। गर्मी के ज़माने में किसी आप गांव के करीब में बाग है आम का, उसके नीचे चले गए, वहीं पढ़ लिया। टीचर थे, 2 टीचर थे उस ज़माने में हमारे स्कूल में। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, आमतौर पर 1 to 1 टीचर स्कूल हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ 2 टीचर थे। तनुक लाल यादव साहब बेहतरीन हेडमास्टर थे, और एक नसीम साहब थे, पढ़ाते थे। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, और ये सिर्फ हमारे गांव की हालत नहीं थी, हमारे गांव के चारों तरफ ये हालत था। इसको बिल्डिंग इक्का दुक्का नजर आती थी, 1 कमरे का स्कूल। लेकिन 1986 की जो पॉलिसी आई उसमें प्रोविजन आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, उसके बेस पर बना कि ईच एंड एवरी प्राइमरी स्कूल मस्ट हैव 2 big classrooms, 1 office for teacher, playground, sports material, and 1 toilet for boys and 1 toilet for girls. ये बेसिक्स। और वो ऑपरेशन की तरह चला था वो 86, 87, 87, 88, 88, 89। जब मैं एमएड कर रहा था तो मैंने अपना डिसर्टेशन इसी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्कीम पर किया था। सो दैट स्कीम चेंज द इंटायर सिनेरियो ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्राइमरी लेवल, बदल दिया। एक्सेस इंप्रूव हुआ एक्सेस। उसके बाद कई सारी स्कीम्स आई गवर्नमेंट की, कई सारी स्कीम्स उसके बाद आती रही, बार बार कई सारी स्कीम्स आई, है ना। बहुत सारे ऑपरेशन चले डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट ने चलाए। चलो विद्यालय चलें, चलो मकतब चलें, इस तरह की बहुत सारे स्कीम्स आई। आखिर में 2009 में जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, 2010 में इंप्लीमेंट हुआ, और उसमें कह दिया गया साफ साफ कि भाई किसी भी बच्चे को प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होनी चाहिए। नो। और आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे किसी भी बच्चे को अपने प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए 1 किलोमीटर पे आप आधा किलोमीटर नहीं चलना पड़ रहा आजकल। बट दिस इज RTE प्रोविजन। प्राइमरी स्कूल मस्ट बी विद इन द पेरिफेरी ऑफ 1 किलोमीटर, मिडिल स्कूल मस्ट बी विद इन द पेरिफेरी ऑफ 3 किलोमीटर, एंड हाई स्कूल must be within the periphery of 5 kilometer. ये एक्सेस, दिस इज द एक्सेस। खत्म कर दिया एक्सेस का बैरियर को खत्म किया, ये था। अब सवाल है कि एक्सेस तो हो गया खत्म, बैरियर खत्म हुआ, इनरोलमेंट बच्चों का फिर भी कम है। भाई एक पेरिफेरी में कहा गया कि प्राइमरी स्कूल में 1 किलोमीटर के दायरे में से होना चाहिए, स्कूल हो गया। अब गांव में जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए वो क्यों नहीं है स्कूल में, क्यों गली में फिर रहे हैं, सड़कों पे फिर रहे हैं, क्यों खेतों में जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ मजदूरी करने के लिए? वाई? एनरोलमेंट को इंश्योर करना होगा, तब जाके इंक्लूजन होगा। इंश्योर एनरोलमेंट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द स्कूल इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस, उम्र के हिसाब से। बाद में RTE ने यह भी तय कर दिया, पहली क्लास में बच्चा जाएगा तो उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए, नर्सरी में बच्चा जाएगा, प्री प्राइमरी में तो 3 साल की उम्र में जाएगा, बच्चे की उम्र अगर 8 साल है तो उसको दूसरी क्लास में होना चाहिए, बच्चे की उम्र अगर 13 साल है तो उसी हिसाब से उसको 9th क्लास में होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट अगर हो चुका है या एडमिशन नहीं लिया है तो पहले उसको ब्रिज कोर्स करा करके इस लायक बनाओ कि वो उस क्लास में दाखिला ले और पढ़ पाए। ये भी प्रोविजन था।
So there were lots of school, small moving schools created. ऐसे बच्चों को लाने के लिए ब्रिज कोर्स करा करके उसको चौथी, पांचवी, छठी के काबिल बनाओ और फिर उसको स्कूल में दाखिल कराओ। इनरोलमेंट को इंश्योर कर दिया गया। समग्र शिक्षा अभियान जो आज के डेट में नाम है, पहले इसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान, बाद में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सारा का सारा अभियान की तरह काम कर रहा था ये, और इसने इनरोलमेंट को तकरीबन 100% पहुंचा दिया। इनरोलमेंट 95, 98, 97 इस तरह से इनरोलमेंट पहुंच गया। हाँ, ड्रॉप आउट का इशू रहा, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, लेकिन इनरोलमेंट तकरीबन अचीव हो गया, जो हाईएस्ट था तकरीबन 90s के अंदर चला गया तकरीबन हर स्टेट। अब एक समस्या थी रिटेंशन की, तो वो तमाम बच्चे जो स्कूल में दाखिले लेने लगे या यूनिवर्सिटी में आकर के कॉलेज में आ गए 12th करने के बाद, उनको रिटेन करना, वो ड्रॉप आउट ना हो, आगे नहीं, वो छोड़ के ना चले। क्यों जाता है कोई बच्चा छोड़ के? ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है? चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, मिडिल स्कूल लेवल के हों, हाई स्कूल लेवल के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज लेवल के बच्चे, व्हाई दे आर नॉट बीइंग रिटेन इन द इंस्टीट्यूशन, व्हाई दे आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? जाहिर सी बात है कुछ फैक्टर होगा, कुछ रीजन होगा, उस रीजन को देखो, रीजन को दूर करने की कोशिश करो, गैप फिल हो जाएगा। लड़कियां ड्रॉप आउट इसलिए हो रही थी कि भाई अगर हाई स्कूल जाना है तो किसी को 4 किलोमीटर चलना पड़ता था, किसी को 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 5 किलोमीटर चलना ही पड़ता था। वो चांस फैक्टर है कि आपका हाई स्कूल, आपका घर आपका हाई स्कूल के बगल में है। मैं जब हाई स्कूल जाता था तो 7 किलोमीटर पैदल चल के जाता था अपने जमाने में, अपने स्कूल में। पुराने जमाने में तो लोग और ज्यादा चलते थे, 15-15, 20 किलोमीटर सुना है हमारे ग्रैंड फादर वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जाया करते थे। डिस्ट्रिक्ट में 2-3 स्कूल हुआ करते थे एक जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में कुछ ही स्कूल हुआ करते थे। बहरहाल, तो एक्सेस को, गैप को ब्रिज किया गया, इनरोलमेंट के गैप को ब्रिज किया गया, रिटेंशन का मसला आया, ड्रॉप आउट को कैसे खत्म करें। जाहिर सी बात है बहुत सारी स्कीम्स आई, बहुत सारे स्कीम्स आए। हाँ, लाडली स्कीम जैसी दिल्ली गवर्नमेंट ने चलाई है ना, यूपी में लैपटॉप वगैरह का स्कीम चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शुरू किया था, जो 2020-21 में, बल्कि उसके पहले ही शुरू हुआ था, तकरीबन 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शुरू हुआ था, और आपको ये सारी की सारी स्कीम चली। नीतीश कुमार ने शुरू किया था बिहार के अंदर इस लड़कियों को साइकिल देने का स्कीम। अब रिवोल्यूशन आ गया था, लड़कियों को साइकिल मिल गया, साइकिल से जाना है इसको, एक जोश भी है, उमंग भी है, मोटिवेशन भी है। तो सपोर्ट सिस्टम जब आता है गवर्नमेंट का, तो एजुकेशन ऐसे आगे बढ़ती है। सो सच स्कीम्स मस्ट बी कंटिन्यूड एंड विल बी कंटिन्यूड। गवर्नमेंट कहती है, एनईपी कहता है कि हम सारी की सारी चीजें, हम और ज्यादा स्कीम्स लाएंगे, लेकिन इंक्लूसिव करना है, हर बच्चे के एजुकेशन को इंश्योर करना है। तो एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, each and every individual, each and every young one must be in some or the other educational institution to ensure their education. Then after enrollment, they must be continuing their education, so retention must be ensured कि ड्रॉप आउट नहीं हो। अब सवाल है कि बच्चा आ भी गया आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा है, अब आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं क्लास में आपके, जाहिर सी बात है 50 बच्चा 50 तरह का है। This is one of the philosophy of education. Each and every individual is unique. हर बच्चा निराला है, हर बच्चा यूनिक है क्लास का, कोई 2 बच्चे जैसा नहीं होता। हाँ, जुड़वा बच्चे भी अगर है ना, ट्विंस भी अगर पैदा हुआ अपने पेरेंट्स का, ट्विंस भी है, वो भी वक्त के साथ माहौल के असर से वो भी थोड़ा अलग हो जाता है। तो हर बच्चा अलग है, 50 बच्चे क्लास में। Now, teachers are supposed to ensure the participation of each and every learner in the classroom. सिर्फ इनरोलमेंट से काफी नहीं, सिर्फ रिटेंशन काफी नहीं, रिटेंशन के लिए शर्त है कि पार्टिसिपेशन, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे लर्निंग के अंदर, इन द क्लासरूम। प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल इवेंट्स है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर बीइंग रन इन द स्कूल और इन द कॉलेज, यूनिवर्सिटीज। सो पार्टिसिपेशन मस्ट बी इंश्योर्ड, ईच एंड एवरी लर्नर मस्ट बी पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। आप क्लास में सिर्फ आगे बेंच पर बैठे 4-10 बच्चों को सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे, बाकी पीछे का बैठा बच्चा
ना उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं आप, ना कोई ना कोई वो पूछ रहा है, वो माहौल ही नहीं क्रिएट किया आपने एज ए टीचर। वो पैसिव लिसनर है और आगे वाला एक्टिव लिसनर है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे वाला बच्चा सवाल पूछ भी रहा है, आप उसी से सवाल कर रहे हैं, वो जवाब भी दे रहा है। आपने जनरल क्वेश्चन क्लास में किया या नहीं किया, करते या नहीं करते आप? कॉमन क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास। वो बच्चा जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सवाल का जवाब कभी नहीं देता, आपने कभी ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया? और उन बच्चों को जो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, कभी सवाल नहीं पूछते हैं, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उसकी तरफ आपने नजर करम फरमाया, आपकी निगाह गई, आपने उसे कंधे पर हाथ रखा, उसको मोटिवेट किया ताकि वो सवाल पूछे। आप उसके पास गए, उसके नॉलेज, उसके एक्सपीरियंस और उसकी एबिलिटी के हिसाब से आपने उससे सवाल पूछा ताकि वो जवाब दे सके, और एक बार जवाब देगा तो जवाब देना फ्यूचर में उसके लिए आसान हो जाएगा। क्या आपने प्लानिंग की, मंसूबा बनाया, कोई योजना बनाई कि हमारे क्लास का हर एक बच्चा किस तरह हमारे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे? आई मीन टू से वी नीड टू ensure participation of each and every learner in the class. ये नहीं कि हम कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर। जैसा अभी आफ्ताब साहब ने कहा कि मैं सब शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग में था, बिहार, यूपी और केरला वगैरह कई जगह गया हूँ, और 8-10 साल मैंने ये काम किया है। 2007 से लेकर 2000 मेरे ख्याल में 14-15 तक काम किया हमने उसमें, बल्कि 17 तक। बाद में तो सब शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा बन गया, मॉनिटरिंग वगैरह बंद हो गई। अब मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, सारा मॉनिटरिंग बंद है अभी, पिछले 16-17 के बाद बंद है पूरा। वो पैसा कहीं और डाइवर्ट हो गया। अब कोई देखने वाला नहीं कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, मिड डे मील कैसे चल रहा है, देयर इज नो मॉनिटरिंग गोइंग ऑन। लेकिन वो सब मॉनिटरिंग हो रही थी पहले। तो हमने देखा है, आई मीन टू से, टीचर की फिलॉसफी को भी इनडायरेक्टली ऑब्जर्व किया। बच्चे की फिलॉसफी, बच्चे की सोच, बच्चे का तजर्बा, बच्चे का एक्सपीरियंस, उनसे बात करके अंदाजा हुआ कि वो क्या सोचते हैं, टीचर क्या सोचता है, समाज के लोग क्या सोचते हैं, और विलेज एजुकेशन कमेटी के मेंबर्स क्या सोचते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स क्या सोचते हैं। सबसे बात की हमने, सबके साथ सैकड़ों मीटिंग की हमने। और आप जाते हैं हैरान हो जाएंगे कि कई बार हमने देखा कि टीचर्स भी कहते हैं कुछ खास कैटेगरी के बच्चों के लिए, ये पढ़ना इनका काम थोड़ा ही है, पढ़ना तो कुछ खास लोगों का काम है, ये पढ़ के क्या करेंगे। हमने देखा क्लास में कुछ बच्चे, और प्राइमरी क्लास में भाई जाहिर सी बात है बेंच वगैरह हर जगह नहीं होती है, अपना घर से बोरी लेके आते हैं या दरी बिछी हुई है, वो 4-5-10 बच्चे हैं, अकेले बैठे हैं क्लास में एक तरफ किनारे में, and they are not being involved in the process of learning. Only a few are being involved in the process of learning through question and answer and discussion. So lots of things were observed those days. जाहिर सी बात है कि गांव में जाइए तो और आपको मिलेगी अलग अलग तरह की सिचुएशन, गंदे कपड़े बच्चे पहने हुए हैं, रिमार्केबल गैप है। जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं उनके कपड़े साफ सुथरे अच्छे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके कपड़े गंदे हैं, मैले कुचले हैं। टीचर उनको दूरी रखता है, दूर से सवाल करो, एक तो सवाल करते नहीं, दूरी रखो। मैं आपको अभी अचानक याद आया, मेरे जहन में अचानक याद आया एक एपिसोड। ये बात 1984 की, जब मैं 9th क्लास में था। हमारे स्कूल में, जो हाई स्कूल में, एक टीचर थे, पढ़ाते थे सिविक्स, और हमारे बड़े भाई जो ब्लॉक के कोऑपरेटिव ऑफिसर थे, उस जमाने में उनकी पोस्टिंग थी झारखंड में, जो मतलब कि उस जमाने में झारखंड था ही नहीं, बिहार का हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, ट्रांसफर हो गया था गिरिडीह, जो अब झारखंड में है। एक पेन उस जमाने में शायद शुरू आया था, वो जिसमें घड़ी हुआ करती थी, नेपाल वगैरह से, बहरहाल तो कहीं से उन्होंने मंगवाई थी, हमारे बड़े भाई के जरिए मंगवाया था उन्होंने, और हम लेकर के गए, ये सर को दे देना। और जब सर को देने के लिए गए तो सर ने कहा कि आप अपनी पेन जो है इस मेज पर रखो, वहां कोने पे। हमने उस पेन को मेज के कोने पे रख दिया। उन्होंने अपने किसी दूसरे स्टाफ को बुलाया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है वो स्टाफ थे या प्यून थे, जो भी थे, उनसे पेन को ट्यूबवेल पर जाकर के कहा कि धो के लाओ।
और धो के लाके फिर उन्होंने अपने हाथ में लिया। If this kind of scenario is there in schools, in college, universities, how can you inclusive education? How can you think about that? That is required to be carried to ground zero. ग्राउंड जीरो पे लाना पड़ेगा चीजों को, ये समझना पड़ेगा सोसाइटी को, समाज को, माशरे को कि हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं। अब वो जमाना गया जो छुआछूत का जमाना था और डिफरेंट कल्चरल बिलीफ्स थे, वही बैरियर बन गए। उन बैरियर को ब्रेक करना होगा, तो पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना पड़ेगा। क्लास में हर बच्चा सीखे, लर्न करे। We need to create such an environment in the classroom where each and every learner, feel free to ask question and encouraged to ask question, motivated to ask question, and you as a teacher need to question to the entire class and take, an advantage to make each and every learner fully participatory in the discussion and deliberation. जब पार्टिसिपेशन इंश्योर होगा तभी जाकर जो अगली चीज है वो लर्निंग आउटकम्स इंश्योर होगा। हर बच्चा सीखे, एक्सेस, एनरोलमेंट, रिटेंशन, पार्टिसिपेशन और पांचवी चीज लर्निंग आउटकम्स। ईच वन मस्ट लर्न। लर्निंग आउटकम्स सब अचीव करें, सबको अचीव होना चाहिए। जाहिर सी बात है अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से अचीव करेगा। ये नहीं कह सकते कि भाई पूरी क्लास को 8 का टेबल, 9 का टेबल, 10 का टेबल याद होगा इक्वली, कोई जरूरी नहीं है। Each one will not be equally competent in all these subjects. वो अपनी जगह है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा नहीं लगता, किसी को अंग्रेजी में मजा आता है, किसी को हिंदी में मजा आता है। ये सब डिफरेंसेस हैं और रहेंगे, लेकिन लर्निंग आउटकम्स मस्ट बी अचीव्ड एज पर द लेवल ऑफ द लर्नर्स। ये ना हो कि हमारा लेवल तो अच्छा था है, या कहें कि बच्चा तो इंटेलिजेंट है लेकिन मार्क्स उसके अच्छे नहीं आए, ये परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया परफॉर्म ठीक से? जब आप कह रहे हो कि उसके अंदर कैलिबर है, इंटेलिजेंट है, पोटेंशियल है, तो एज अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियलिटीज दैट द चाइल्ड है, ही और शी मस्ट अटेन द लर्निंग आउटकम्स। तो जब हम इन पांचों चीजों को इंश्योर कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन, दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन, इंश्योरिंग ईच एंड एवरी लर्नर इन द क्लास access, enrollment, retention, participation as well as learning outcomes। हर बच्चा सीखे, तभी वो जो नारा है सब पढ़ें और सब बढ़ें, तभी वो कामयाब होगा। जब ये वाकई लर्निंग आउटकम्स तक सब अचीव करें हर बच्चे अपने अपनी क्षमता के हिसाब से, सब पढ़ें तब सब बढ़ेंगे। सब अगर सिर्फ स्कूल में दाखिला लेने से नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ इस क्लास में रिटेन करने से नहीं बढ़ेंगे। पार्टिसिपेशन जब करेंगे तब चांस बढ़ेगा, और जब लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे तब बढ़ेंगे। और तब भी कहेंगे हम कि यस वी हैव अचीव थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन। ईच वन इज लर्निंग इन द क्लास, ईच वन इज अचीविंग इन द क्लास, ईच वन इज अचीविंग देयर गोल्स दे सेट आउट एट द बिगिनिंग। तब समाज का उत्थान होगा, फैमिली का उत्थान होगा, माशरे की तरक्की होगी, और कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है पूरा देश तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। उसको इंश्योर करना है। दिस इज बेसिकली दीज आर नाउ एलिमिनेटिंग बैरियर्स। ये बैरियर्स को कैसे एलिमिनेट करें, हमने बहुत सारी बातें कर ली ऑलरेडी, है ना। बैरियर्स, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स, ये अपने आप में बैरियर है। जो मैंने बात की आपको, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की, RT की बात की, हमने 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की बात की, जो RT के प्रोविजन है, ये सारे प्रोविजन है बैरियर्स को एलिमिनेट करने के लिए थे, अब किए गए। पॉवर्टी अपने आप में एक बैरियर है। पॉवर्टी, गरीबी, आज़ादी के पहले का हिंदुस्तान और आज़ादी के बाद के चंद सालों का जो हिंदुस्तान था, वहाँ पेरेंट्स कहते थे कि बच्चे को भेज देंगे स्कूल तो कमाएगा कैसे, खाएंगे क्या। फैमिली भी बड़ी होती थी उस जमाने में, पेरेंट्स 4, 5, 6, 7 बच्चे, छोटे समय, एक आदमी कमाने वाला, 10 लोग खाने वाले हैं, कैसे होगा। स्कूल भेज देंगे, अरे चलो स्कूल छोड़ो, चलो खेत में काम करते हैं, कम से कम एक और मजदूरी तो बढ़ेगी, एक और हैंड बढ़ेगा, अर्निंग होगी।
See, poverty is basically the most, strong or strongest, barrier. और इकोनॉमिस्ट तो कहते हैं कि एक विशियस साइकिल है. Poverty brings, illiteracy, and illiteracy brings again poverty. ये पूरा रास्ता है, साइक्लिक प्रोसेस. तो आपको हथौड़ा मारना पड़ेगा पॉवर्टी पे, इस बैरियर को खत्म करना पड़ेगा. उसके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम लानी पड़ेंगे. बहुत सारे स्कीम हैं. बच्चों को दीजिए आप, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो समग्र शिक्षा है उसमें ऑटोमेटिक फ्री किताब है, फ्री स्कूल का ड्रेस है, फ्री बैग है, स्कूल की कोई फीस नहीं है, नो फीस. सरकारी स्कूल में जाइए आप, 10वीं क्लास 12वीं क्लास तो कोई फीस नहीं है आपकी. 8वीं तो सब कुछ फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है. उसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स भी हैं. आपको बहुत सारे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप के लिए है, ताकि कोई बैरियर न बने, रुकावट न बने शिक्षा के अंदर. हालांकि आज की डेट में मैं ये देखता हूँ शायद हिंदुस्तान में तस्वीर बदल रही है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्कीम्स जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, कि हर गरीब से गरीब तबका भी बच्चों को पढ़ाना चाहता है. अब वो पढ़ाना चाहता है बच्चे. हाँ, अपना फल बेचेगा, ठेले पे फल बेचता है, लेकिन बच्चे को भेजता है स्कूल. और वो भी हमने देखा, हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. मैं जिस आदमी से फल खरीदा करता था आमतौर पे, जब मैं दूसरी जगह रहता था, तो एक दिन हम ऐसे ही मॉर्निंग वॉक पे निकली तो देखा कि ये आदमी जो है बच्चे को शायद स्कूल छोड़ने के लिए आया है. बस का इंतजार कर रहा था. मैं थोड़ा सा देखता रहा कौन सी बस आती है, तो एक प्राइवेट स्कूल की बस आई. मैं उसको पहचान गया कि ये तो वही आदमी जिससे मैं फल खरीदता हूँ. मैं देखता रहा थोड़ा दूर खड़े होकर के, और फिर हमने तय कर लिया कि अब फल इसी से खरीदना है जब तक खरीदना है यहाँ पे. फिर मैंने जाके उससे अगले दिन बात भी की, पूछा भी, बातचीत किया ना. सो देयर आर लॉट्स ऑफ सच एग्जांपल्स. या गुर्बती के बावजूद, गरीबी के बावजूद, पॉवर्टी के बावजूद, डिफिकल्टीज के बावजूद पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. उनके समझ में आ गया है कि शिक्षा ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो हमारे भविष्य को बदल सकता है. अब इस सोच का फायदा हमें उठाना होगा, हमारी सरकार को उठाना होगा, कि जब पब्लिक ये समझ रही है, तो कहते हैं ना कि जब तवा गर्म हो तो रोटी सेको. तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, टीचर की रिक्रूटमेंट पर फोकस करो, टीचर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट को फोकस करो, और स्कूल और हायर एजुकेशन के जो रिसोर्सेज उस पर फोकस करके, और आप बच्चों को एजुकेट करने का जो मौका है उसको सीज करो. देन सोशल मोर एंड कस्टम, ये भी एक बैरियर है. जो रीति रिवाज जो होते हैं खासतौर पे, है ना, जो हमारे समाज में, हमारे माशरे में होते हैं, जैसे मुस्लिम सोसाइटीज है, लड़कियों के लिए बहुत सारी चीजें हैं. कैसे भेजें, कोएड स्कूल में नहीं भेजेंगे भाई, यहाँ पर गर्ल्स स्कूल होता तो भेज देते, कोएड स्कूल है कैसे भेजें. दिस शुड नॉट बी द बैरियर ऑफ एजुकेशन. ठीक है, अगर नहीं है तो भेजिए आप कोएड स्कूल में, टीचर है वहाँ, सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ख्याल रखेगा उनका, है ना, डिसिप्लिन बच्चे हों तो नो इश्यू एट ऑल. बल्कि कोएड में तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं. अगर सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन में बच्चे गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, बॉयज के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर समझ समाज के आधे तबके से कैसे करें इंटरेक्ट, उससे वो महरूम रह जाते हैं. नहीं सीख पाएंगे आप, ओपन अप नहीं होंगे आप. आपका इंटरेक्शन सिर्फ लड़कों से हो रहा है, सिर्फ लड़कियों से हो रहा है. तो जो जिनका इंटरेक्शन सिर्फ लड़कियों से हो रहा है, उन्होंने ये नहीं सीखा कि लड़कों के साथ कैसे बात की जाती है, लड़कों से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, लड़कों के साथ अगर कोई गेम करना हो, कोई कॉम्पिटिशन फेस करनी हो तो कैसे करेंगे. इसका मतलब ये कि this will bring some kind of deficiency in the system. We need to prepare a full-fledged personality wherein each and every individual must be able to learn to interact with each section of the society. इसलिए co-education की माना जाता है, it is better education system as far as the development of personality is concerned. अगर वो कुछ ट्रेडिशनल बैरियर सामने ना आए तो these are some of the barriers. The language अपने आप में बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है. देखा होगा आपने भी, बच्चा बिहार से आया है, 12वीं करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, टीचर मिल गया, पूरा 45 मिनट अंग्रेजी में भाषण देता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता. बच्चा सहरसा, पूर्णिया, कटिहार से आता है, जामिया में दाखिला लिया, अलीगढ़ में दाखिला लिया, JNU में दाखिला लिया, अब टीचर अंग्रेजी में पढ़ा रहा है. आधी क्या 75% बात सर के ऊपर चली जाती है. तो लैंग्वेज हैज बिकम ए बैरियर. इस बैरियर को जो खत्म करना पड़ेगा. इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेरेंट्स बच्चों को डाल देते हैं, पैसा उनके पास है, घर की जबान अंग्रेजी नहीं है, तो उन बच्चों को ज्यादा फायदा भी नहीं होता है.
अपने आप में बैरियर होगा। NEP 2020 कहता है कि नो, लैंग्वेज शुड नॉट बी ए बैरियर इन एजुकेशन। हिंदुस्तानी में पढ़ाओ। ये तो कहता है कि 8वीं क्लास तक मदर टंग में पढ़ाना है, रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए 8वीं क्लास तक, बिल्कुल। और हो सके तो 10वीं 12वीं तक पढ़ाइए आप रीजनल लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में पॉसिबल हो तो। और हायर एजुकेशन में हिंदुस्तानी यूज कीजिए, ताकि ईच वन शुड लर्न। लैंग्वेज शुड नॉट एक्ट एज ए बैरियर फॉर द लर्नर्स इन द क्लासरूम। ये चीज। देन लास्ट, परसेप्शन अबाउट स्कूलिंग, ये भी एक है। लोगों का मानना है कि इररिलेवेंट है, स्कूल इज इररिलेवेंट एंड फॉरेन टू देयर लाइव्स। स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा मत जाते हैं, इसलिए आजकल हमने हमारे एमए की क्लास ले रहा था, हमारे साथ एक बच्चा था जो एमए एजुकेशन में है, और उसने अजीम प्रेम जी से ग्रेजुएशन किया था। तो उसके साथ उसका कुछ एक्सपीरियंस था, उसने शेयर किया कि आजकल लोग होम स्कूलिंग पर, बहुत सारे जो एडवांस्ड लोग हैं, हाईली मॉडर्न फैमिलीज हैं, वो होम स्कूलिंग पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। होम स्कूलिंग क्या है भाई? बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, सारी फैसिलिटीज घर में देंगे, हर तरह के टीचर्स हैं, हर तरह के रिसोर्सेज हैं। बच्चा सिर्फ एग्जाम देगा जाकर, एग्जाम देने के लिए बहुत सारे सिस्टम है आजकल। ग्लोबल लेवल पर भी एग्जामिनिंग बॉडीज हैं, असेसमेंट की बॉडीज है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। लेकिन स्कूलिंग होम बेस्ड स्कूलिंग, सारी चीज पढ़ रहे हैं घर के अंदर। उन लोग समझते हैं कि स्कूल में जाकर के हमारा बच्चा खराब हो जाएगा, इसलिए कि स्कूल के अंदर हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, हर तबके के बच्चे आ रहे हैं, हर मजहब के बच्चे आ रहे हैं, हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं, हर कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चे आ रहे हैं। और अगर आम ठेठ जबान में कहें, लो जो है मैं इसकी लैंग्वेज में कहें तो अनकल्चर्ड फैमिली के बच्चे आ रहे हैं। झुग्गी जोबी के बच्चे भी हो सकते हैं, गांव के बच्चे भी हो सकते हैं, जो गाली गलौज भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं स्कूलों में। होम स्कूलिंग नया शुरू हुआ कॉन्सेप्ट। एक जमाने में एवन एलिश ने कॉन्सेप्ट दिया था डी स्कूलिंग सोसाइटी, समाज ऐसा हो जिसमें स्कूल की जरूरत ही नहीं। ईच इंडिविजुअल शुड लर्न फ्रॉम वन अनदर, बिल्कुल। हालांकि मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, स्कूल होना चाहिए। So these are the barriers of inclusive education, but all these barriers can be handled. They are being handled. Issues are being tackled, and we are moving towards providing inclusive education to all children, all young ones in the country. लेकिन एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं हो, इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन हो। BA की डिग्री, MA की डिग्री, PhD की डिग्री लेके सड़क पे अगर घूम रहे हैं तो आप एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो न बच्चा न घर का है न घाट का, कहते हैं ना, ये गधा न घर का है न घाट का, किसी काम का नहीं। न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। न तो वो अपने बाप के खेत में जाके काम कर सकता है या बाप के कारखाने में जाके काम कर सकता है, इसलिए कि वो PhD कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, हिस्ट्री में उसने MA कर लिया है, तो वो तो कर नहीं सकता, और ना उसको नौकरी मिल रही है, क्योंकि या तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज नहीं है या उसके अंदर क्वालिटी नहीं है वो जो होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर होनी चाहिए। जो हिस्ट्री पे ग्रास्प होनी चाहिए वो है नहीं उसके अंदर। PhD किसी सब्जेक्ट में किया तो जो पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट पे शायद वो नहीं है, उसके साथ लैंग्वेज नहीं है या और कोई इश्यूज हैं। एनीवे, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ वन और मोर फैक्टर्स, he or she is is standing at a point from where nothing is visible. ना तो उधर जा सकता है ना तो उधर जा सकता है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है और एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी है। और उसके लिए गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे करेगी, करना ही चाहिए। वेलफेयर स्टेट का काम जो होता है वो होना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन टीचर्स की एक बड़ी जिम्मेदारी है। टीचर्स, क्वालिटी टीचर ही ला सकता है, क्वालिटी सरकार नहीं ला सकती। सरकार तो सिर्फ रिसोर्सेज दे सकती है, लेकिन लर्निंग को, ये क्वालिटी को इंश्योर करना टीचर का काम है, वो टीचर कर सकता है। लर्निंग की क्वालिटी को इंश्योर हमें करना होगा, आपको करना होगा, हम सबको करना होगा। उसके लिए हम सबको डेडिकेटेड होने की जरूरत है। हम सबको अपने लर्निंग में टीचिंग को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, लर्निंग ओरिएंटेड बनाने की जरूरत होगी, पार्टिसिपेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी, हर बच्चे को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के हो सकता है।
इसलिए नीचे जो लिखा है पॉलिसीज टू ब्रेक द बैरियर, इन बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए जो पॉलिसीज बहुत सारी आई हैं, हमने बात कर दी है, इसलिए ज्यादा बात इस पर करूंगा नहीं। आरटी का प्रोविजन मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। मिड डे मील स्कीम, जो बात आई थी ना पॉवर्टी की, बच्चों को खाना नहीं मिलता था हिंदुस्तान में, जो कहते थे ना कि बच्चे एक जमाने में हिंदुस्तान में गाँव में खासतौर पर छोटे छोटे शहरों में भी बगैर नाश्ते के बच्चे चले जाते थे स्कूल, भूख लगी हुई है स्कूल में, क्योंकि खाना घर में एक ही बार बनता था 11 बजे, 3 टाइम खाना कहाँ, तो स्कूल छोड़ के भागते थे घर। अब भूखा पेट क्या करे, भूखा पेट तो भजन में नहीं होता, नमाज में नहीं होती, क्या करेगा वो, ध्यान नहीं लगेगा उसका। तो मिड डे मील स्कीम के पीछे का लॉजिक यही था, बच्चों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पढ़ने के साथ साथ उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो, ये था पूरा का पूरा। तो सन 2000 में शुरू हुआ था हमारा यूनेस्को के कंट्रीब्यूशन से मिड डे मील स्कीम। सर्व शिक्षा अभियान की मैंने बात कर ली, टीचिंग लर्निंग इन मदर टंग लोकल लैंग्वेज मैंने बात कर ली आपसे, अवेयरनेस कैंपेन एंड स्कैटर्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल पॉकेट्स, जो मैंने बात की थी, जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, टेक्निकल होल्डर्स है, स्किल पर्सन है, नौकरी मिले, समाज को नजर आए कि एजुकेशन इसे कामयाब बनाती है। देखिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए समाज के लोगों को। आजकल कई बार सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना होगा तो शायद मुझसे सुन लीजिए। गांव के लोग कहते हैं, गांव, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, और हम आप सब में बहुत सारे लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, है ना, आज भले शहर में रहते हूँ, गांव से ताल्लुक होगा। तो एक आम तौर पे लोग गांव में क्या होता है, गांव में बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं, दिल्ली चले जाते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज में काम कर लेते हैं, पैसा कमाने लगते हैं। वहाँ हम लोग बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, माँ बाप पर बोझ बने हुए हैं, और हमारी उम्र का बच्चा जो है वो हर महीने 5,000 रुपया 2,000 रुपया बाप माँ को भेज रहा है। वो लोग कहते हैं देखो मेरा बेटा कमा रहा है, आपका तो कुछ कर नहीं रहा है, और फिर बीएससी एमएससी करने के बाद नौकरी नहीं मिली, तब तो और कहते हैं लोग पढ़ लिख के क्या हुआ है, इससे अच्छा तो हमारा बेटवा ही है ना। ये जो थिंकिंग है उसको ब्रेक करने की जरूरत है, उसको ब्रेक करने की जरूरत। ये ब्रेक कब होगा, जब उन्हीं में का बच्चा एजुकेशन लेने के बाद नौकरी में आएगा, तब जाकर होगा। इसे मैंने लेकर उन्हीं के दरमियान के बच्चे कामयाब होते हुए उनको नजर आने चाहिए, तो जाके इम्पैक्ट आएगा, यार दिस इज एजुकेशन, उनकी लाइफ बदली हुई नजर आएगी। वो सिर्फ पैसा आ रहा था, अब एजुकेशन के साथ जो नौकरी आई है तो इज्जत भी आ रही है, दोनों चीजें आ रही है, तो जाके एजुकेशन सो सक्सेसफुल। अब इन बैरियर को खत्म किया, इनके थ्रू पॉलिसीज टू ब्रेक दीज बैरियर्स, ये पॉलिसीज थी। अब क्या होगा, आपको मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सक्सेसफुल प्रोग्राम जो स्कीम्स रही गवर्नमेंट, जिससे बहुत बड़ा चेंज आया। हालांकि ये मैंने विजिट थोड़ा बहुत कर दिया आपके साथ। सक्सेसफुल प्रोग्राम तो रहे बहुत सारे हिंदुस्तान में। एज ए मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग टीम हमने देखा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV को बहुत गौर से देखा। मैंने बताया ना आपको 2007 से लेकर के 15-16 तक जब मैंने काम किया, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लड़कियों के एजुकेशन के लिए खास तौर पे। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में लड़कियों की तालीम बहुत पीछे है, आज भी पीछे है, हालांकि बहुत अफसोस की बात है। दूसरी तरफ एक बहुत खूबसूरत बात है, इंकरेजिंग बात है कि लड़कियां आप लड़कों के मुकाबले ज्यादा अच्छा कर रही हैं। आप देख लीजिए केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट, CBSE का बोर्ड का रिजल्ट देख लीजिए, आप किसी भी बोर्ड का रिजल्ट देख लीजिए हिंदुस्तान के स्कूल बोर्ड का एग्जाम का, लड़कियां हमेशा लड़कों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन जब उनकी एनरोलमेंट की बात करते हैं नेशनल लेवल पे, तो उनका एनरोलमेंट ही कम है। ये इशू 2000 के दरमियान बहुत ज्यादा था, 90s में और ज्यादा था, 80s में और ज्यादा था, 70s में और ज्यादा था। बहरहाल 2004 में सर्व शिक्षा अभियान के कंपोनेंट के तौर पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से एक स्कूल शुरू किया गया। पूरे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होगा, हर एक ब्लॉक में। पूरे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के हर एक ब्लॉक में आज की डेट में KGBV काम कर रहा है, और वो भी हर ब्लॉक के उन इलाके में जहां पर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग ज्यादा हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज के लोग ज्यादा हैं, दलित के लोग ज्यादा हैं, जो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी बैरियर्स। उनके लिए खास तौर पे इट वाज ओपन टू ऑल गर्ल्स, बट स्पेशली फॉर दीज
खोला गया। कहा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो लड़कियां नहीं जा रही हैं, उनको केजीबी में दाखिल करो। रेजिडेंशियल स्कूल था ये, रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल। बच्चों को वहां फ्री में रखा जाएगा, एजुकेशन भी दी जाएगी, खाना भी दिया जाएगा, पानी भी दिया जाएगा, साबुन तेल दिया जाएगा, कपड़े दिए जाएंगे, और कुछ स्किल डेवलप होता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, इस तरह के स्किल को डेवलप करने के लिए भी सारे टीचर्स 7 टीचर हुआ करती थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तब। इनका काम था क्या कि बच्चों को लाओ पकड़ के एडमिशन पेरेंट्स आके करा जाते थे, कन्विंस करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, परसुएड करना पड़ता था, राजी करना पड़ता था, पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता था, बच्चे आना शुरू हुए केजीबीवी में। अब बच्चे अपना पढ़ रहे हैं वहां पर। आमतौर पर केजीबीवी को किसी न किसी मिडिल स्कूल के साथ जोड़ दिया गया था, मिडिल स्कूल के साथ जोड़ा हुआ था, है ना। स्कूल के टाइम के अलावा सुबह और शाम में ये केजीबीवी के टीचर्स पढ़ाएंगे उनको, है ना, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस। और स्कूल के टाइम में वो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, अपने एज के लेवल के हिसाब से। 6ठी के लायक होगा तो 6ठी में, लायक तो 7वीं में, 8वीं के लायक तो 8वीं में। 6ठी में दाखिला कराने के लिए जरूरी है कि जब बच्चा पहली बार आई लड़की स्कूल में, अब उसको लिखना तो आता नहीं, पढ़ना तो आता नहीं, तो पहले उसको ब्रिज कोर्स कराया जाता था। उसमें 6 महीने लगे, साल भर लगे, 1.5 साल लगे, पढ़ा उसको। जब वो 6ठी में दाखिले के लायक हो जाए तो 6ठी में दाखिला हो गया, या फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं करेगी। It is one of the most important, I think, most successful program of education, school education in India, KGBV. I have personally experienced the effect of KGBV. एक बहुत बड़ा परिवर्तन लगे आया है, बहुत बड़ा चेंज। हमने सैकड़ों केजीबीवी विजिट किया। लड़कियां, वो बताइए कि इतना बैकवर्ड फैमिली की बच्चियां, जब उनको कल्चरल प्रोग्राम देती थी तो आप कह नहीं सकते थे कि ये वो बच्चियां हैं। बहुत सारे इवेंट्स मैंने देखे उनके, जाते थे, हमको इंस्ट्रक्शन हुआ होता था मिनिस्ट्री का, भाई आपको हर एक कंपोनेंट देखना है सबसे शिक्षा अभियान का। हम लोग हर एक कंपोनेंट देखते थे। चलता रहा प्रोसेस। बच्ची 6ठी, 7वीं, 8वीं, है ना, बच्चे 8वीं के बाद फिर वापस घर चले जाते थे। फिर पेरेंट्स उनकी चाहे तो दाखिला करा दे 9th में किसी स्कूल में, हाई स्कूल में, या फिर जो भी व्हाटएवर। एक बार ऐसा हुआ कि ये बात तकरीबन 2011-12 की है। आई वॉज मूविंग आउट ऑफ द केजीबी आफ्टर इंस्पेक्शन। तो वहां के एक टीचर ने कहा, सर लड़कियां आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं, केजीबी गर्ल्स। मैंने कहा अच्छा। हम गए, वापस गए। लड़कियां 8वीं क्लास की लड़कियां इकट्ठा बैठी थी, टीचर्स वहां के मौजूद थे। मैंने क्या बात है, बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? लेकिन नहीं सर, परेशानी तो कुछ भी नहीं है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को 8वीं क्लास से, दिस वॉज द रिक्वेस्ट, ये 8वीं क्लास हमारा एग्जाम हो जाएगा और फिर हम लोग को घर भेज दिया जाएगा और पेरेंट्स हमारी शादी कर देंगे, वो हमें स्कूल में दाखिला कराएंगे नहीं, हम आगे पढ़ना चाहते हैं सर। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप केजीबीवी को 8वीं क्लास से बढ़ा करके 10वीं तक करवा दिया जाए सर। दिस वॉज अ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द गर्ल्स ऑफ क्लास 8 ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। आई वॉज सो हैप्पी टू लिसन टू दैट, और उसको मैंने रिपोर्ट में शामिल किया। रिपोर्ट हमने जमा किया जामिया के अंदर, जो हमारी मॉनिटरिंग टीम थी, मिनिस्ट्री में उसको सबमिट किया गया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकमेंडेशन, दैट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री टुक अ डिसीजन टू रेज द लेवल ऑफ केजीबीवी टू क्लास 10th। ये कर दिया गया। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। लाडली स्कीम दिल्ली में बहुत सारा काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। टारगेटेड स्कॉलरशिप बहुत सारी है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग स्टेट में, है ना, बहुत सारी स्कीम चलती रहती है, काम होता रहता है, इस सारी की सारी चीजें अब, है ना। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप को अभी बंद भी किया गया है। आपको बताऊं, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप है, पीएचडी में दिया जाता था। ये मौलाना आजाद फाउंडेशन को बंद किया गया था अभी कुछ दिनों पहले, शायद उसमें केस हुआ और कोर्ट ने शायद कहा है कि नहीं, जवाब मांगा है गवर्नमेंट से। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप मस्ट नॉट बी स्टॉप्ड, बिकॉज इनसे बड़ी राहत मिलती है उन लोगों को जो इकोनॉमिकली, जो बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं। उनको बहुत ताकत मिलती है, तकवीत मिलती है, फोर्स मिलता है, शक्ति मिलती है, और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने में वो कामयाब हो पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि नए स्कीम्स शुरू होने चाहिए, ना कि पुराने स्कीम को बंद करना चाहिए। देन द कंडीशनल कैश ट्रांसफर टू इंसेंटिवाइज पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी हुआ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल रेगुलर भेजते हैं, उनको इंसेंटिव के तौर पर कोई दिया जाता है ताकि वो भेजते रहे बच्चों को।
उनको मोटिवेट के लिए। हमने साइकिल का जिक्र किया आपको, बिहार गवर्नमेंट ने मोटिवेशन किया। बिहार में तो एक तरह से जब इन्होंने साइकिल की स्कीम लेके आए थे तो हमने तो एक तरह से उसको बिल्कुल ही एक बहुत बड़े चेंज के तौर पर उसको देखा है। मैं अपने गांव जब जाता हूं तो उस जमाने में जब शुरू हुआ था तो देखकर मैं हैरान रह गया कि यार ईच एंड एवरी गर्ल्स फ्रॉम दोज फैमिलीज वेयर एजुकेशन वाज नॉट एट ऑल, वहां से लड़कियां निकल रही हैं स्कूल और स्कूल जा रही हैं साइकिल लेकर के। सो दिस वाज ए बिग चेंज इन इंडियन सोसाइटी। सो एज ए होल इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है कि हम समाज के हर एक तबके को, हर एक सेक्शन को क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करें, और इसके लिए हम जो रास्ते अख्तियार कर सकते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जो स्कीम हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्कीम हम चला रहे हैं, उन सबको कंटिन्यू करते रहें और नए स्कीम्स लेकर के आएँ, ताकि समाज का हर तबका अपने अपनी पोटेंशियलिटीज के हिसाब से एजुकेशन ले और आगे बढ़े। किसी भी कारण से, किसी भी वजह से, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, चाहे वो सोशल फैक्टर हो, चाहे वो इम्पेयरमेंट का फैक्टर हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मेंटली रिटार्डेड हो, विजुअल इम्पेयरमेंट हो, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, किसी भी तरह का इम्पेयरमेंट हो, ऑल दीज शुड नॉट हिंडर इन द एजुकेशन प्रोसेस। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। So I think there are lots of things to be discussed. Aspirational district का concept है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात NEP 2020 ने बात किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की है चैप्टर 6 में। ये पूरे हिंदुस्तान में जो इलाके ऐसे हैं जहाँ एजुकेशनली बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, उनको स्पेशल इकोनॉमिक एजुकेशनल जोन में कन्वर्ट करने की बात है। और वहाँ पर नए सिरे से स्कूल खोले जाएंगे, गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल्स, कोएड स्कूल्स, और बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी ताकि वो एजुकेशन में आगे बढ़ें और अपनी तरक्की को जो है को अचीव करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा काम अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट सर्व शिक्षा अभियान के दौरान ही पूरे हिंदुस्तान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो डिस्ट्रिक्ट जो एजुकेशनली बैकवर्ड थे, जिनका एनरोलमेंट रेट बहुत कम था, रिटेंशन बहुत कम था, है ना, लिटरेसी बहुत कम थी, SC ST का परसेंटेज ज़्यादा था, ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से आइडेंटिफाई किया था। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन के स्कीम्स को जो है बहुत ज़्यादा फोर्सफुल्ली इम्प्लीमेंट किया था और उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया गया था, वो भी था। उसी तर्ज पे यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन को बनाने की बात है। अब बहुत सारे आइडेंटिफाई किए गए हैं बिहार के अंदर, यूपी के अंदर। बिहार में देखिए आप कटिहार, सहरसा, पूर्णिया का इलाका जो है स्पेशल एजुकेशन जोन के अंदर आता है, है ना, बहुत बैकवर्ड इलाके हैं। उसी तरह से आपको बंगाल के अंदर बहुत सारे इलाके हैं, यूपी के अंदर, हर स्टेट में कुछ ना कुछ इस तरह के इलाके हैं, राजस्थान में बहुत सारे इलाके हैं, है ना। सो दीज आर द मीन्स एंड to break the barrier of inclusive education. If we as a teacher and government of India can implement this policy in an effective manner, the days we can observe in future that the inclusive education gets success in providing quality education to each and every citizen of the country. I think the time is very moving very fast, and I continue for almost the whole time. So now I'm going to stop, and now the house is open for question, discussion, your experiences you can share with me. So thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर एक मसला ये है कि एक तरफ हमारा भी ताल्लुक एक गांव से है, तो वहाँ पे तो लानतें सुननी पड़ती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो मतलब कुछ नहीं कर पाएगा आगे। अगर आगे के जो हालात आ रहे हैं, जो हर चीज़ को प्राइवेट के तौर पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में तो इनरोलमेंट और भी कम होगा और पढ़ाई की तरफ लोगों का रुझान कम हो जाएगा सर, मेरा ख्याल है ये ज़ाती। हो जाएगा वो तो खैर बात की बात है, देखेंगे। प्राइवेट स्कूल तो खैर बहुत दिन से चल रहा है ना, और वो तो यकीन सही कह रहे हैं आप, ख़त्म होने वाला है नहीं। ख़त्म करने के लिए आपको एक बहुत ही हार्ड डिसीजन की ज़रूरत है, बहुत ही सख्त फैसला लेना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल को ख़त्म कर दीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दीजिए। ये इतना काम गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं होता है, इस तरह का हार्ड डिसीजन लेना। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हार्ड डिसीजन लेंगे तो ये इतने सारे बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको स्कूल बढ़ाने पड़ेंगे, और इतने बड़े तादाद में स्कूल
अचानक शुरू करना गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान काम नहीं होता है। इसलिए जी बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह खत्म होगा, वो तो रहेगा अपनी जगह पे, है ना। जैसे मैंने बताया भी, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना भी नहीं चाहते, वो तो प्राइवेट नहीं भेजना चाहते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। तो या तो फिर वो ये है कि जो एनईपी 1986 जो कहता है, कोठारी कमीशन ने बताई थी कि नेबरहुड स्कूल सिस्टम हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए, है ना, वो कि अपने पड़ोस के स्कूल में तालीम हासिल करें, कॉमन स्कूल सिस्टम आना चाहिए। वो कॉमन स्कूल सिस्टम तो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। आज की डेट में उस फैसले पर जाना शायद लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इट इज, है ना, बहुत मुश्किल है। जहां तक आपने से कहा कि पेरेंट्स जो कहते हैं, जो बात मैंने भी कही, पेरेंट के लिए जरूरी है कि पेरेंट को कन्विंस भी करना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा, और इस तरह के जो पेरेंट्स सवाल करते हैं उनको दूसरे उस पेरेंट्स से मिलवाएं, उस पेरेंट्स से उनको कन्विंस करवाएं जिनके बच्चे कामयाब हुए हैं एजुकेशन लेकर के, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाओ चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। और ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल बिल्कुल ही कुछ नहीं करता, सरकारी स्कूल के टीचर्स ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, है ना। बात मैंने कई बार की है ना कि हम टीचर्स को चाहिए कि हम डेडिकेटेड होकर काम करें, हमें अपने लेवल पे भी काम करने की जरूरत है ना। जी सर, वो चीज। बहुत शुक्रिया सर। जी, और किसी का कोई सवाल हो, है ना। मेरे ख्याल में हमने तो कहा था कि मैं 1 घंटा बात करूंगा, लेकिन बात मैंने शायद ज्यादा कर ली, है ना। कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल हो, मैं ओपन फॉर डिस्कशन एंड डिलिबरेशन, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं, ये क्या है नाम का? डॉक्टर सैयदा बानो। सैयदा बानो जी, सैयदा बानो मैडम। सैयदा बानो, एक डॉक्टर रितेश कुमार, और कोई एनीबॉडी एल्स वांट टू शेयर एनीथिंग? सवाल नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जी कोई सर, आपका नो क्वेश्चन सर। आपका अपना तजर्बा कुछ हो वो भी शेयर कर सकते हैं आप। तो वाइंड अप कर दो फिर क्या, सैयदा बानो? जी सर, बेहतर रहेगा, कारामद बातें आपकी हैं माशाल्लाह। चलिए मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश नहीं सवाल तो की। फिर हमारे ख्याल में वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।